We are discussing numerical side from nuclear and radiochemistry. ठीक है? So in yesterday's lecture हमने जो न्यूमेरिकल डिस्कस किया वो न्यूमेरिकल्स मेनली दो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड थे. नंबर वन, that is lambda is equal to 2.013 upon t log base 10 n0 upon n. That is the first formula. And second formula is nothing but you can say half life period t1/2 is equal to 0.693 upon lambda. So सारे न्यूमेरिकल्स मे भी उसके अंदर का वर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, न्यूमेरिकल रखने का तरीका डिफरेंट होगा, लेकिन हमने जो न्यूमेरिकल सारे सॉल्व किए सारे उसी फॉर्मूले के बेस न्यूमेरिकल में सॉल्व किए. और हम अच्छी तरह जानते हैं इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला फॉर्मूला काउंटर होता है वो है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी का. फिर उसके बाद आता है ये रेट ऑफ डीके, रेट लॉ एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ लाइफ पीरियड, एंड फिर लास्ट में आता है दैट इज यू कैन से अल्फा बीटा एंड गामा डीके. So that is what we are discussing here. So I think so there won't be any difficulty and doubt to anyone among this one, or if you have, please let us know. Okay. So once again, good evening everybody, because there are some students who are lately joining. So let's move to the next numericals now here. So is there any difficulty? Please let me know. Otherwise, we will proceed with the next numerical again. So here, page number 203. और कल जो हमने न्यूमेरिकल किया था मेरे ख्याल से E 65% ऑफ इंडियम सैंपल उसका हमने न्यूमेरिकल किया था. ठीक है. अभी टॉपिक बदल रहा है मतलब न्यूमेरिकल का टॉपिक बदल रहा है, फॉर्मूला बदल रहा है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज page number 303 and numerical number f name numerical. So you can say f numerical. What is given here in this numerical? Given topic, whatever the given in the numerical has the half mark. Please need to write it well. Numerical state that calculate the binding energy per nucleon of krypton whose atomic mass is 83.913 unified mass. Mass of neutron is given and mass of proton is also given, or we have to calculate the binding energy per nucleon. So what is given? सबसे पहले देखिए कि element दिया हुआ है. So nuclide, better don't say element, it is nuclide. Nuclide, कौन सा nuclide दिया है? That is you can say krypton. Krypton 8436 and here is 84 mass number whose atomic mass is given. So atomic mass of this krypton is given. So mass of krypton, that is atomic mass of krypton is given, which is 83.913 unified mass. Also mass of proton is given. Mass of neutron is also given. Mass of neutron is 1.0087 unified mass, and mass of proton is also provided, that is you can say 1.0078 unified mass. Okay, so it's very magic to again आप देखिएगा कि mass of neutron 1.0087 and mass of proton is 1.0078. So this is the mass which is provided. Forget about it, but all this is the data given, and what they ask, calculate the binding energy per nucleon. So binding energy per nucleon is equal to how much? B bar is equal to how much? This is the numerical. Okay. अब देखिए, we have the solution. Now, already we have written the data. कि क्या दिया है इस न्यूमेरिकल के अंदर? न्यूमेरिकल के अंदर आपको दिया है nuclide दिया है, that is krypton is the nuclide. The krypton nuclide is formed, and here you can say mass of krypton is given, that is 83.913. This is a unit called as a unified mass. This is a unit called as a unified mass. जैसे हम ग्राम कहते हैं, जैसे हम किलोग्राम कहते हैं, वैसे बहुत smaller unit है, that is unified mass, and one unified mass is equal to 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. ऐसा उसका मतलब है. So this is a unified mass, which is a unit. This is the mass of neutron. Mass of neutron is again here 1.0087 unified mass. Mass of proton. Mass of proton MP भी लिखा जाता है, MH भी लिखा जाता है, दोनों भी चलता है. And that is 1.0078 unified mass. That is what we get here. And you have been asked to calculate the binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon. ठीक है? So अब देखिएगा, हमें जो पूछा है उसका फॉर्मूला क्या है? Binding energy per nucleon का फॉर्मूला क्या है? So we have here binding energy per nucleon is equal to binding energy upon A, ऐसा हमारा फॉर्मूला है. So as per the formula हम जाते हैं, तो binding energy per nucleon is equal to binding energy upon mass number ऐसा फॉर्मूला है. अब देखिए, mass number जो है A,
इट्स प्रोवाइडेड, जो यहाँ पे दिखता है आपको 84 दिया हुआ है, ये तो हमारे पास। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी हमें निकालना पड़ेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का सेकंड फॉर्मूला ऐसा है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट डेल्टा एम इनटू 931.4 million electron volt as a formula. This is the unit again. This is the unit, million electron volt. So we have this formula. So binding energy is equal to delta M into 931.4 million electron volt. Again, वो unit इतना होता है। अभी जैसे मैंने कहा था कि कोई भी न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है तो हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, थोड़ा सा टॉपिक पता होना जरूरी है, फॉर्मूले पता होना जरूरी है। ये तो फॉर्मूले है, लेकिन इसके अंदर अभी भी प्रॉब्लम है। बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो मास डिफेक्ट की जरूरत है। मास डिफेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, और मास डिफेक्ट का दूसरा एक फॉर्मूला आता है, दैट इज यू कैन से मास डिफेक्ट डेल्टा m इज इक्वल टू m डैश माइनस m। अभी ये m डैश क्या होता है? दिस m डैश इज अ कैलकुलेटेड मास एंड दिस m इज नथिंग बट यू कैन से ऑब्जर्व मास। तो दिस m इज गिवन ओवर हियर, दिस इज द मास ऑफ क्रिप्टॉन जो यहाँ पे दिया हुआ है 83.91, एंड ये जो कैलकुलेटेड मास है हमें कैलकुलेट करना है बाय नोइंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है उससे हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब देखिए m डैश कैसे निकालेंगे हम लोग? सो वी कैन हैव योर m डैश इज इक्वल टू उसके पहले वी हैव टू डिस्कस द प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। एक फॉर्मूला हमने ऐसा भी देखा है, a इज इक्वल टू z प्लस n, a इज इक्वल टू z प्लस n, ऐसा फॉर्मूला देखा हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस किया था, इस चैप्टर में देखा था। a रिप्रेजेंट द मास नंबर, z represent the atomic number and n represent the neutron number. We have seen this things. तो अभी देखिए इसके अंदर हमें मास नंबर तो पता है, that is 84, z भी पता है, that is 36, न्यूट्रॉन पता नहीं। न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा फिर? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a माइनस z। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a कितना है? that is 84 माइनस z कितना है आपका? 36 तो कितना आएगा ये? 84 माइनस 6, 14 से 6 8 अगेन और 1 4 48। सो 48 वुड बी न्यूट्रॉन नंबर। सो हमें न्यूट्रॉन नंबर मिल गया, प्रोटॉन नंबर मिल गया। सो वी कैन से हियर हम लोग क्या मिल गया देखिए, दैट इज z इज इक्वल टू 36 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देन n न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल जो हमने कैलकुलेट किया 48, हम दोनों ऐड करेंगे तो 284 होना चाहिए। 8 और 6 14 बनाया तो 8 तो 84 हो जाता है। So that is what we can say tally, and a is nothing but you can say 84, ये हमको मिल गया। Okay, so we got these particles, z मिल गया 36, then n मिल गया 48 और एटॉमिक नंबर मास नंबर भी मिल गया 84। अभी कैलकुलेटेड मास क्या होता है? सी कैलकुलेटेड मास का भी एक फॉर्मूला है, कैलकुलेटेड मास इज इक्वल टू ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास दिया है इससे कैलकुलेट करना पड़ता है, टोटल पार्टिकल से कैलकुलेट करना पड़ता है। सो क्रिप्टॉन जो है वो क्रिप्टॉन 36 प्रोटॉन्स का बना हुआ है और 48 न्यूट्रॉन्स का बना हुआ है, और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है। सो कैलकुलेटेड मास क्या होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इनटू z, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज n, दैट इज n, ये हो जाता है। ओके, इतना हो जाता है। सो इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है आपका? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.0078 इनटू z कितना है आपका? 36 ये बनेगा, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.0087 इनटू मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? 48, ये बनेगा। सो ये जो है ये पहला हमारा आएगा, जो भी आएगा वो आंसर आएगा कैलकुलेटेड मास। ये जो कैलकुलेटेड मास आएगा, ये कैलकुलेटेड मास यहाँ पे रखना पड़ेगा हम लोग को, दैट यू कैन से ये आएगा वो व्हाट इज देन डेल्टा m इज इक्वल टू m डैश माइनस m। तो m डैश जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे आएगा और m यहाँ पे आएगा हमारा, m जो है वो यहाँ पे है, दैट यू कैन से दिस वन am यहाँ पे रखेंगे, दैट विल गेट यू डेल्टा m, और डेल्टा m जो है वो यूनिफाइड मास में आएगा, बिकॉज़ ये सारे मास यूनिफाइड मास में दिए हुए हैं, तो डेल्टा m यूनिफाइड मास में आएगा। फाइनली ये फॉर्मूला हम लोग इसके अंदर रख देंगे। देन उसके बाद आएगा हमारा be इज इक्वल टू डेल्टा m इनटू 931.4, और जैसे ये आएगा हम लोग निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन इज इक्वल टू डेल्टा m इनटू 931.4 डिवाइड बाय a, दैट इज 84 बिकॉज़ ये फॉर्मूला क्या, बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन इज इक्वल टू b अपॉन 84। b कितना आ रहा है हमारा? b इतना आएगा, सो डेल्टा m जो आएगा यहाँ पे रखना 84, दैट इज यू गेट द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन, और एज पर द बुक दिस आंसर इज गिवन
I think so 8.7 billion electron volt. This is 8.7 million electron volt. इतना है. This is binding energy per nucleon. बस that's all. Clear with this? अभी देखिए आपको क्या क्या करना है. न्यूमेरिकल्स में ऑलमोस्ट 80% वैल्यूज मैंने पुट किया है. जिस कैलकुलेशन बचा है जहाँ पे लॉग टेबल की कोई जरूरत नहीं है. ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का आप कर सकते हो. सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो, एडिशन करो, ये आएगा आपका m डैश और m डैश का वैल्यू यहाँ पे रखो. am is nothing but this one. ये जो है मास ऑफ क्रिप्टॉन. सो मास ऑफ क्रिप्टॉन इज गिवन, वो यहाँ पे रखिए और हम लोग इससे डेल्टा m निकालेंगे. यहाँ पे डेल्टा m यहाँ पे रखेंगे, 931 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी मिलेगा. बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे रखो, 84 के साथ उसे डिवाइड करो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में व्हिच इज बeen asked to you. Clear with this? ये should I do this multiplications and divisions also very important. यहाँ पे दोनों अगर मल्टीप्लाई करते तो सीधा एक फिगर आएगा, बस उसका लॉग माइनस इसका लॉग करेंगे, एंटी लॉग देखेंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा. Clear with this? Hope everyone got this numerical. What to do here? What is been asked? इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या दिया था आपको? न्यूक्लाइड दिया था क्रिप्टॉन, whose atomic number is 36, mass number is 84, and atomic mass of this element is given. Or here mass of neutron, mass of proton is given, and binding energy per nucleon is been asked. तो अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करना तो हमारा फॉर्मूला है B/A. पहले B कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम लोग B बार कैलकुलेट कर सकते हैं. तो B कैलकुलेट करने के लिए B इक्वल डेल्टा M इनटू 931. इसके अंदर एक बात जरूर ऐसी है कि डेल्टा M should be used in unified mass. डेल्टा M का जो वैल्यू होता है वो यूनिफाइड मास में आना चाहिए, जैसे ये वाला. क्योंकि डेल्टा M is a mass defect that can be मतलब यूनिट कैन बी पुट फॉर दैट इज यूनिफाइड मास, दैट इज मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, अलग अलग यूनिट्स में दिए जाते हैं. हमें कंपलसरी यहाँ पे उसको यूनिफाइड मास में लेना पड़ेगा, बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 931.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो जितना भी डेल्टा M होगा उसे 931.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैलकुलेट करते तो बाइंडिंग एनर्जी आपको मिलेगा. डेल्टा M कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, that is mass calculated mass minus observed mass. Observed mass जो है यहाँ पे दिया है ऑलरेडी 83.913. कैलकुलेटेड मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा m डैश. m डैश कैलकुलेट करने के लिए हमें a, z और n पता होना जरूरी है. a हमें पता है बिकॉज जो यहाँ पे दिया हुआ है. z हमें पता है जो ये होता है बिकॉज हम केमिस्ट्री में कोई भी न्यूक्लियर ऐसे दिखा देते हैं, x z a ऐसे दिखाते हैं. दैट इज, तो x is a symbol of element, z is atomic number, a is mass number. तो यहाँ पे दिया हुआ है 36 is z, 84 is a. तो n निकाला जाता है a is equal to z plus n से. तो हमने a is equal to z plus n से n is equal to a minus z निकाला. 84 minus 36 is 48. 48 is a neutron number. तो हमें न्यूट्रॉन नंबर मिला. इसके बाद हमने फिर कैलकुलेटेड मास किया. ये जो कैलकुलेटेड मास कैलकुलेट करना था यहाँ पे लिखा हमने मास ऑफ प्रोटॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. क्योंकि देखिए ये जो एटम है क्रिप्टॉन, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना हुआ है. तो कितने प्रोटॉन्स है? 36 प्रोटॉन्स है. एक प्रोटॉन का इतना मास है. कितने न्यूट्रॉन्स है? 48. इसका मास इतना. ये कुल मिला के क्या होगा? दिस इज द मास ऑफ दिस न्यूक्लाइड, क्रिप्टॉन का मास. एंड दिस इज नथिंग बट द कैलकुलेटेड मास. एक्चुअल पार्टिकल से जो कैलकुलेट करते हैं उसे कैलकुलेटेड मास कहते हैं, जो m डैश आएगा. तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे रखो. ये वैल्यू अगर आप गलत कैलकुलेट करते हो तो दैट इज द कैलकुलेशन मिस्टेक व्हाट यू हैव डन. फिर ये वैल्यू यहाँ पे रखो. m तो हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके थे 83.913. ये यहाँ पे आएगा. ये दोनों का जो डिफेक्ट है यहाँ पे आएगा. ये यहाँ पे रख दो, 931 से मल्टीप्लाई करो, आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा. बाइंडिंग एनर्जी को यहाँ पे रख दो, 84 से डिवाइड करो, आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगा. क्लियर विद दिस? दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल. आपके लिए क्या छोड़ा है? बस आपको ये मल्टीप्लिकेशंस करना है. ये ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों ऐड कर दो, यहाँ पे रख दो. फिर ये वैल्यू यहाँ पे रखना है. ये इंडेक्स का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे रखो, सब्सट्रैक्ट करो, आंसर आ जाएगा. फिर ये डेल्टा यहाँ पे रखो, 931 से मल्टीप्लाई करो, वो आंसर यहाँ पे रखो, 84 से डिवाइड करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. कैलकुलेशन में आप गड़बड़ी करते हो, दैट इज योर फॉल्ट, बट डू इट, इट विल बिकम easier for you to solve. Clear with this? So take a snapshot or you can write down it on your notebook. Done. Then I will move on to next numerical. Our next numerical is G numerical, जो ऑलमोस्ट इसी टाइप का है. मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के साथ ही जुड़ा हुआ है. नेक्स्ट numerical F numerical. ओके, अब देखिए G नंबर का न्यूमेरिकल.
given things. G numerical में given things. Calculate the energy in million electron volt released in the nuclear reaction. Nuclear reaction दिया है iron sorry is 174 upon 77. So this is the element which radiates and produces Re, whose mass number is 170 and 75, 75 and 170 plus. Here is emitted particle helium, that is 2, 4. This reaction is given. Atomic mass of Irium is given. So mass of Irium is this element mass is given. That is also mass 173.97. 173.97 unified mass. Okay. Then इसका Re का भी mass दिया है. Mass of Re is equal to, that is 169.96. 169.96 unified mass. And mass of helium भी दिया गया है. That is 4.0026 unified mass. And what has been asked to you? Calculate the energy in million electron volt released in the nuclear reaction. How much energy is released? मतलब simply binding energy is equal to how much released here in this process. देखिए, release और absorb होता क्या है? Release और absorb होता है. मतलब calculate the binding energy released in this reaction. आइंस्टाइन के कहने के हिसाब से, आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, mass is neither created nor destroyed during the course of chemical reaction. Either mass is converted into the energy या फिर energy can be converted into mass. किसी भी रिएक्शन में जब एनर्जी रिलीज होता है तो मास इज लॉस्ट और एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो मास इज फॉर्म. इस टाइप का कॉन्सेप्ट वो कहता है. तो इसका मतलब कोई भी न्यूक्लाइड, ये न्यूक्लाइड बनता है, ये न्यूक्लाइड बनता है, तो एनर्जी या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी. क्योंकि ये पार्टिकल जब इकट्ठा आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और पार्टिकल जब ब्रेक डाउन होते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है. दोनों के ऊपर डिपेंड. अभी ये रिएक्शन तो हो चुका है. अभी इस रिएक्शन के अंदर कितना एनर्जी रिलीज हुआ या कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, that depends upon how much mass is either lost or how much mass is either created. So generally there should be a mass lost and that's why energy is created. और इसीलिए हमें बाइंडिंग एनर्जी अगर निकालना है तो वापस अभी जो हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से जाना पड़ता है. That is binding energy is equal to delta m into 931.4 million electron volt. ये हमारा फॉर्मूला है. जिससे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं. अभी ये भी पता है वापस मैंने कि दिस डेल्टा एम का जो यूनिट होता है वो यूनिफाइड मास होता है. मतलब डेल्टा एम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. अभी हमने देखा कि डेल्टा एम कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सो देयरफॉर अगेन यहां पे आता है कि डेल्टा एम इज इक्वल टू m डैश माइनस m. अभी m कैसे कैलकुलेट करना है हम अच्छी तरह जानते हैं. अभी हमने देखा हाउ टू कैलकुलेट दिस m. m कैलकुलेट करने की हमें जरूरत किस बात की है? हां, एटॉमिक नंबर मास नंबर की होती है. लेकिन अभी ये रिएक्शन है. पहले वाले एग्जांपल में क्या था? एक ही न्यूक्लाइड दिया था. यहाँ पे एक्चुअल रिएक्शन दिया है. तो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है. तो यहाँ पे m डैश कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है. उसी तरीके से थोड़ा सा अलग है. वो समझना है एक्चुअली वो गुगली क्या है, वो पंच क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है. फिर बाकी न्यूमेरिकल इजी है. किसी भी रिएक्शन में देयर इज अ मास लॉस. मास लॉस तो होता ही होता है किसी रिएक्शन में. तो m डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? तो m डैश कैलकुलेट करने के लिए m डैश इज इक्वल टोटल mass of reactant minus total mass of product. ऐसा होता है. अभी इस रिएक्शन में this is the reactant and these are the products. तो total mass of reactant minus total mass of product करेंगे तो हम लोगों को mass defect पता चलेगा. ठीक है. तो अब देखिए mass of reactant में एक ही reactant है, that is और इसका जो mass है that is 173.97 दिया हुआ. You can say mass of Irium कितना है? 173.97. ये पहले ब्रैकेट में आएगा. एक लोता रिएक्टेंट है, ये यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक Re है और एक हीलियम है. दोनों का मास ऐड करना पड़ेगा ताकि इट बिकम्स इक्वल टू दिस वन. और जो नहीं बनता है दैट इज द डिफरेंस एक्चुअली. तो यहाँ पे पहला ब्रैकेट क्लियर होगा. ये हमारा सेकंड ब्रैकेट में माइनस ये आ जाता है. सो यू कैन से मास ऑफ Re प्लस मास ऑफ हीलियम, ये दोनों आएंगे. सो हियर इट विल बी 173.97 माइनस ये मास ऑफ Re कितना है? 169.96 प्लस ये आएगा 4.0026 यूनिफाइड मास. अब ये दोनों मास ऐड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, आपको क्या आएगा? m डैश. गॉट इट? और
सीधा 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 डेल्टा एम आएगा। सॉरी, ये फॉर्मूला की जरूरत है ही नहीं है। दिस फॉर्मूला इज नॉट नीडेड, दिस फॉर्मूला इज नॉट नीडेड। द रीजन बिहाइंड सीधा डेल्टा एम आएगा, सीधा हियर यू विल डेल्टा एम। सीधा डेल्टा एम क्यों आ रहा है, सीधा डेल्टा एम क्यों आ रहा है? बिकॉज दिस इज द रिएक्शन। ये वाला जो फॉर्मूला है वो रिएक्शन में नहीं, जब सिंगल न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियाइड होता है तब ये फॉर्मूला, बिकॉज उस न्यूक्लियाइड का कैलकुलेटेड मास माइनस उस न्यूक्लियाइड का ऑब्जर्व मास होता है। इसके अंदर this is the reactant and this is the product. So total mass of reactant minus total mass of product. This is the formula for this delta m. हम ऐसा कह सकते हैं जो हमने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे। So delta m is equal to mass of reactant minus mass of product. पता चलेगा either mass is created or mass is lost. और whatever the delta m we got it, वो delta m यहाँ पे रखना है, इसके साथ multiply करना है, आंसर आ जाएगा। तो already everything is written. This is written, which is the total mass of iridium. This is the mass of Re and helium. दोनों ऐड करो, दोनों माइनस करो, मास डिफेक्ट मिलेगा। मास डिफेक्ट इसके अंदर डाल दो। ये ऑलरेडी यूनिफाइड मास में दिया हुआ है, ऑलरेडी यूनिफाइड मास में दिया है, तो यहाँ पे आपको कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस डेल्टा एम जितना भी आएगा वो डेल्टा एम इसके अंदर रख दो, 931 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर विद दिस? कर भी सकते हैं हम लोग सिंपली। ये न्यूमेरिकल दैट इज 169.96 प्लस ये कितना आएगा 4.0026, तो 6269 है ना, देन 170.9626 इतना आएगा। 26 नहीं लिखा तो भी चलेगा, 96 लिखा तो भी चल जाता है, लेकिन ले लेते हैं हम लोग। और ये इसमें से क्या करना है, माइनस करना है इसमें से, दैट इज यू कैन से 173.97 माइनस 173.9626, तो ये 00 आएगा। तो 10 minus 6 4 1, 10 minus 3 7 1 0 9 9 0 0 0 0। दिस इज द मास डिफेक्ट पॉइंट यहाँ पे। तो मास डिफेक्ट कितना आएगा 0.0074 यूनिफाइड मास। तो फाइनली बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m into 931.4। तो इज इक्वल डेल्टा m कितना आपका 0.0074 into 931.4। बस इतना कैलकुलेशन करो, ये आपका आंसर आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर विद दिस? होप सो यू कैन गेट अभी दिस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको ये दोनों का, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर है। दैट इज व्हाट बुक में जो दिया है, दिस आंसर इज 6.89 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू कैन से 6.89 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर व्हाट वी गेट। सो इधर आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देखिएगा एवरीवन, then we'll come to know that okay, how much the answer what we get here. So this is the answer for this numerical. Numerical में पहले न्यूमेरिकल में देखिए, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में एक ही न्यूक्लाइड दिया था, इसके अंदर रिएक्शन दिया हुआ, और किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, मास डिफेक्ट कैसे निकालना पड़ेगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अभी इसके अंदर और एक थोड़ा गूगली है कि आयरन का मास यहाँ पे 174 है, दैट इज हियर, बट एक्चुअली दिया हुआ 173.97। ये जनरली राउंड ऑफ होता है, तो रिएक्शन का रेफरेंस नहीं लेना है, जबकि आपको ये मास क्लियरली मेंशन है, दिए गए। तो दिस इज मास ऑफ आयरन 173.97, तो ये रिएक्टेंट का मास आएगा जो यहाँ पे लिखा है। और आरई और हीलियम ये दोनों प्रोडक्ट है, तो उनका मास यहाँ पे आएगा जो ऐड होगा, तो दोनों का मास ऐड होगा और फिर इसका और इसका डिफरेंस होगा, और ये डिफरेंस बहुत कम आता है, जनरली ऐसा आएगा 0.0 में आता है, 0.0 में आता है, 0.0 आता है। सो ये आ जाता है, और फिर 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.89 के आसपास आंसर आता है। इसके अंदर मैं एक आपको टेक्निक बताना चाहूंगा कि हमारे पास जितने सारे एलिमेंट्स है, मोस्टली जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट 16 से ज्यादा है, 20 के ज्यादा है और 60 के अराउंड है, वो सारे एलिमेंट्स का जो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 7 के आसपास, 7 to 8 के बीच में आता है, और 8 to 9 के बीच में आएगा। और बाकी जो एलिमेंट जिनका मास नंबर उससे कम है, या फिर मतलब 60 से कम है, उनका जनरली 7 से थोड़ा कम आता है, लेकिन 6 से ज्यादा आता है। तो ये आंसर ऑलमोस्ट इसी के अराउंड होता है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो उसी के अराउंड में आएगा पर न्यूक्लियन का। दिस इज एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कैलकुलेट करना है तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का वो 6 to 8 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 to 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में ही होता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर बिटवीन 8 to 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो हमने पहले न्यूमेरिकल में निकाला था। इसके अंदर दो बाइंडिंग एनर्जी है, तो बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करता है हाउ मच मास इज लॉस्ट उसके ऊपर। सो रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर रिएक्टेंट दो है, सॉरी प्रोडक्ट दो है, रिएक्टेंट एक ही है,
कभी कभी रिएक्टेंट भी दो होते हैं तो दोनों का ऐड करो, प्रोडक्ट 2 3 4 जितने होंगे उनका ऐड करो, फिर निकालो। क्लियर विद दिस? तो दो ही न्यूमेरिकल थे, दो अलग अलग थे इसके अंदर के, ये जो जी नंबर का, ठीक है। टेक अ स्नैपशॉट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर राइट इट डाउन। Done. Let's move to the next numerical. Next numerical H, numerical number H as per the book. What is given? Okay. Now H numerical number के लिए कहता है 3/4 of the original amount of radioisotope decays in 60 minutes. What is its half life period? अभी ये numerical already हमने solve किए थे, फिर भी मैं given thing लिख देता हूँ. 3/4 of the original amount of radioisotope decays in 60 minutes. देखिए टाइम दिया है 60 मिनट और 3/4 डीके होता है, मतलब 3/4 अमाउंट डीके होता है, decays 3/4 amount decays in 60 minutes. What is its half life period? T 1/2 is equal to how much? Solution. अभी देखिए T 1/2 हाफ लाइफ पीरियड हमें निकालना है तो फॉर्मूला अभी क्लियर है, 1/2 is equal to 0.693 upon lambda. Unless and until we have the lambda, we won't be calculate the half life period. तो lambda कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है वापस, lambda is equal to 2.303 upon T into log base 10 n0 upon n. क्या आपको लगता है इसके लिए डेटा दिया है सफिशिएंट? देयर इज n0 और n, ये क्वांटिटी दिए हुए नहीं है उसके अंदर? यस, 100% दिए हुए है। लैम्बडा कैलकुलेट करने के लिए n0 upon n क्वांटिटीज दी हुई है यहाँ पे। क्लियर? सो कैसे दी? देखिए यहाँ पे क्लियर कहा है कि 3/4 क्वांटिटी डिकेज, 3/4 क्वांटिटी डिके होती है, और जब फ्रैक्शन दिया जाता है तो n0 जो होता है ना, n0 हमेशा 1, जैसा परसेंटेज लेंगे तो n0 हमेशा 100 होता है, एक्टिविटी लेते हैं तो n0 हमेशा 1 होता है, और फ्रैक्शन लेते हैं तो फ्रैक्शन हमेशा 1 का होता है। इन दैट सेंस n0 इज इक्वल टू 1 होता है। अभी फिर n कितना आएगा, n कितना आएगा, n कितना होगा? तो जैसे मैंने कहा कि अगर मानो आपको 100 रुपीज दिया जाता है, विच इज इनिशियल अमाउंट, n0 100 अमाउंट दिया आपको, और आप कहीं गए और आपने उसके अंदर से 20 रुपया खर्च किए, 20 खर्च किए। अभी आपके पास कितने पैसे बचे हुए हैं? इनिशियल आपके पास 100 था, उसमें से आपने 20 खर्च किए, तो बचा हुआ अमाउंट है 100 माइनस 20, दैट इज 80। तो 80 रुपीज आर विद यू। उसी तरीके से इनिशियल अमाउंट है 1 ग्राम, वॉट एवर दैट 1 है, 3/4 डिकेज, 3/4 डिके होता है, मतलब वो खर्च हो रहा है, तो रिमेनिंग कितना है? तो रिमेनिंग शुड बी 1 minus 3/4, 1 minus 3/4। हम अच्छी तरह जानते हैं n is equal to 1 minus 3/4। ये सॉल्व कैसे करेंगे? 4 1 जा 4 minus 3/4, तो it is equal to 1/4, that is n0। तो n0 कितना आएगा? 1/4 आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए न्यूमेरिकल पूछने का तरीका अलग है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कि क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर, क्या पूछा है, ये अगर हम क्लियरली पता है तो इट बिकम्स इजियर फॉर अस। तो इन दैट सेंस व्हाट आई स्टेटेड कि n0 इनिशियल अमाउंट नहीं दिया उन्होंने, बस कहा है कि 3/4 डीके होता है इनिशियल अमाउंट का, तो इनिशियल अमाउंट हैज टू बी कंसीडर्ड एज अ 1 यूनिट एंड 3/4 इज डिकेड, वो खर्च हुआ, तो ओरिजिनल 1 था उसमें से 3/4 माइनस कर देंगे तो 1/4 बचेगा, क्योंकि 4 1 4 4 minus 3 अपॉन जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, 4 1 4 4 minus 3 divided by 4, 1/4 is the amount which is remaining, और हमारे फॉर्मूला के अंदर n is remaining और n0 is initial, तो n0 मिल गया है, n मिल गया है, t ऑलरेडी दिया हुआ है 60 मिनट्स, तो हमारे पास लैम्बडा है, लैम्बडा यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड आएगा। Clear this? So this is the way how we can solve this numerical. Take down the snapshot of this. मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, इसका आंसर है फिर लैम्बडा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t कितना है 60 log base 10 n0 1 अपन यहाँ पे कितना आएगा आपका 1/4 आएगा। सो सीधा lambda is equal to 2.303 अपॉन 60 into log base 10 4 ऐसा आएगा।
बिकॉज ये ऊपर चला जाएगा तो log बेस 4 होगा। तो अभी 4 का log लीजिएगा, उसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर सबका log एंटीलॉग दिखेगा, एंटीलॉग के बाद ये वैल्यू लैम्डा का यहाँ पे रखिएगा और फिर हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा। क्लियर विद दिस? दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस अगेन, स्क्रीनशॉट। Done? Okay. Done this also? क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में शायद पूरा बोर्ड लगेगा। यस, पूरा बोर्ड लगेगा। ओके, GHI, आई नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ पे गिवन। वापस अभी फॉर्मूला बदल रहा है, तरीका बदल रहा है। देखिएगा, how many particles are emitted by 0.1 gram of 226 radium in 1 year? So amount दिया है, so weight of element is equal to 0.1 gram और न्यूक्लाइड कौन सा दिया है? That is radium, रेडियम न्यूक्लाइड दिया है जिसका मास नंबर 226 है। 226, ये मास नंबर बारीकी से देखते चलिएगा, हर एलिमेंट में 226 224 ऐसा होता है। बोले रेडियम ही होता है, लेकिन रेडियम का मास नंबर 226 भी है, 224 भी है, 232 भी है। सो याद रखिएगा, दिस हैज टू बी केयरफुली रीड एंड रिटन। एंड पूछा क्या गया आपको कि टाइम दिया है, टाइम इज आल्सो गिवन, दैट इज 1 ईयर। क्लियर कहा है, दैट इज मेंशन 1 ईयर। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर इमिटेड? How many particles are emitted in 1 year by this 0.1 gram? अब देखिए, रेडियोएक्टिव एलिमेंट का क्वांटिटी कितना है? 0.1 ग्राम क्वांटिटी आपके पास, और 0.1 ग्राम क्वांटिटी एक साल में कितना अमाउंट इमिट करेगी, कितने पार्टिकल्स इमिट करेंगे, ऐसा पूछा है इसके अंदर। तो बहुत 2 लाइन का न्यूमेरिकल है, बट काफी मस्त न्यूमेरिकल, काफी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। Once again, how many particles are emitted by 0.1 gram of radium-226 within 1 year? ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। Solution: how many particles? तो हमें rate of decay की जरूरत है। We have to calculate rate of decay, and rate of decay is nothing but you can say rate of decay is minus dn upon dt, number of atom disintegrating in unit time. अभी नंबर ऑफ एटम रेट निकालना तो dn अपॉन dt करना पड़ता है। तो dn होता क्या है? dn इज नंबर ऑफ एटम, जो रेट होता है। यही r का मतलब ये है, a का मतलब r है, dn अपॉन dt, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इक्वेशन हमारे पास है माइनस dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ऐसा होता है। सॉल्व करते हैं तो माइनस dn अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा n। दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। सो दिस इज द रेट ऑफ डिके। हां, दिस इज द रेट ऑफ डिके, मतलब हाउ मेनी पार्टिकल्स विल बी इमिटेड, इससे मिलेगा, दैट इज number of atoms multiplied with the rate of decay constant। तो decay constant से और number of atoms को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका इस इक्वेशन के अंदर दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ डिके। हाँ, पर सेकंड पर ईयर हम लोग निकाल सकते हैं, रेट ऑफ डिके पर सेकंड होता है, पर मिनट होता है, पर आवर भी होता है, पर ईयर भी होता है। हमें यहाँ पे सीधा एक साल में निकालना है। सो रेट ऑफ डिके के लिए हमें डिके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स को। कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए? इसके अंदर लैम्डा इंडिकेट्स करता है decay constant and this n indicates करता है number of radioactive atoms present at that instant, and this number of atoms हमें पहले निकालना पड़ेगा कितने number of atoms वहां पे है present। हमारे पास क्वांटिटी दी है, हमें दिया है 1 ग्राम क्वांटिटी, 0.1 ग्राम क्वांटिटी, बट नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट गिवन टू अस। सो हमें ये करना पड़ता है कि देखिए, atomic mass of any substance is called as 1 mole, and 1 mole is 6.022 into 10 raised to 23 particles। ये atoms, ये मैं atoms लिखता हूँ, if substance is taken in atomic form। ये शायद बहुत ही बेसिक पार्ट है जो हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट में केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया, और मैंने कई बार बताया कि जिनको मोल कॉन्सेप्ट पता नहीं है उन्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में डिफिकल्टी आएगी। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, मोल कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, व्हिच इज इन सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट।
atomic mass of any atom is called as a 1 mole, that is mole atom, and 1 mole always consists of 6.022 into 10 to 23 particles, that is atoms. जैसे 1 dozen माने 12 होता है, जैसे 1 dozen माने 12 होता है, उसी तरीके से 1 mole इसका मतलब है 6.02 into 10 to 23, और 1 मोल के लिए क्वांटिटी कितना चाहिए, एटॉमिक मास। अभी ये कौन सा एलिमेंट दिया है, रेडियम, रेडियम का एटॉमिक मास इज हियर 226, क्योंकि एटॉमिक मास है उसका। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 226 ग्राम कंसिस्ट ऑफ 6.022 into 10 to 23 एटम्स, 23 एटम्स। ओके, अभी अभी 226 ग्राम काउंट टू बी दिस पार्टिकल, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं, तो हमें दिया है 0.1 ग्राम। You can say 0.1 gram consists of n number of atoms या x atoms, x atoms। तो हमें x कैसा निकालना पड़ेगा, x atoms is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 0.1 into 6.022 into 10 raised to 23 डिवाइड बाय 226, इससे आपके एटम्स आ जाएंगे, इससे आपके एटम्स आ जाएंगे। मतलब हमने क्या किया, 226 which is called as atomic mass, किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास में इतने एटम्स होते हैं, तो 226 में इतने एटम अगर है तो हमें कितना क्वांटिटी दिया है, 0.1 ग्राम दिया है। 0.1 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होते हैं हम निकालेंगे, दैट इज n एटम्स, दैट इज यू कैन से x एटम्स को हम n एटम्स कहते हैं, दैट इज यू कैन से n एटम्स। जो यहाँ पे ये n, ये n, तो n मिल गया, तो ये जो भी वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट n एटम्स। बट व्हाट अबाउट दिस डीके, डीके नहीं मिला हम लोगों को, डीके निकालना पड़ेगा। डीके निकालने के दो तरीके हैं, नंबर 1 फार्मूला दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t 1/2, और दूसरा है लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 n0 अपॉन n। यही दो तरीके हैं हमारे पास लैम्डा निकालने के। अभी दूसरा है कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि हमें n तो मिल गया यहाँ पे, जो हम यहाँ पे लैम्डा मिलेगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। गॉट इट? नाउ द थिंग इज दैट हमारे पास n तो मिल गया, अभी ये लैम्डा निकालना है। लैम्डा कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द लैम्डा। लैम्डा निकालने के लिए दो तरीके हैं। अभी ये करने के लिए हाफ लाइफ पीरियड की जरूरत है, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ। इसके लिए देखते हैं, इसके लिए हमें t दिया है, दैट इज 1 ईयर, 1 ईयर दिया है, बट n0 और n नहीं दिया है, n0 और n नहीं दिया है, वो इनडायरेक्टली दिया है। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो निकालना है। आप देखिएगा, वापस न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय 0.1 ग्राम ऑफ रेडियम इन 1 ईयर। 0.1 ग्राम ये क्वांटिटी डिके हो रहा है, मतलब डिके कितना हो रहा है, 0.1 ग्राम, इतना डिके हो रहा है। सो दैट इज यू कैन से n0 अपॉन n, ये टोटल क्वांटिटी का डिफरेंस जो डिके है वो सीधा 0.1 ग्राम है, तो हम सीधा 0.1 ग्राम ले सकते हैं क्वांटिटी, दैट इज यू कैन से। तो लैम्डा के लिए 2.303 अपॉन t इज log base 10 0.1 ग्राम, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ डिके। उतना ही डिके है ना, उतना ही डिके है। सो इतना अमाउंट डिके हो रहा है और वही पार्टिकल इमिट करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज द 0.1 ग्राम व्हिच इज डिकेड, तो उतना अमाउंट डिके हो रहा है, तो उससे हम लोग लैम्डा निकालेंगे। ये लैम्डा हम लोग इसके अंदर रख देंगे यहाँ पे, और n हमने निकाला यहाँ पे रख देंगे, विल गेट द टोटल क्वांटिटी बिकॉज़ दिस डिके इज फॉर 1 ईयर, टाइम भी कितना है, 1 ईयर है। सो दैट यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1 ईयर। अभी उसे डेज में वगैरह कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन सीधा 1 ईयर इनटू log बेस 10 0.1 इतना आता है, दिस क्वांटिटी इज डिके। तो इससे आपका डीके आ जाएगा, वो डीके यहाँ पे रखो, n का वैल्यू निकाला वो रखो, आपको टोटल पार्टिकल्स इमिटेड मिलेगा। सो दिस पार्टिकल विल बी देयर, कितने पार्टिकल्स इमिट होते हैं वो यहाँ पे आपको इसके साथ मिल जाएगा। क्लियर विद दिस, एवरीवन गॉट इट? वापस एक बार समझते हैं न्यूमेरिकल। देखिए आप लोग कि द गिवन इज दैट हाउ मच पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय 0.1 ग्राम क्वांटिटी ऑफ रेडियम 226 इन 1 ईयर, ऐसा पूछा गया है। सो हमने क्या किया कि रेट ऑफ डिके माइनस dn अपॉन dt व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, and this dn upon dt is equal to lambda। तो we need a lambda, we need n, जो इसके अंदर नहीं दिया, n indirectly दिया। तो n is number of atoms, हम जानते हैं atomic mass of any substance contains 6.022 into 10 to 23 particles। किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास में इतने पार्टिकल होते हैं, तो हमें क्वांटिटी दिया है 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम के अंदर कितने एटम होंगे, इतने एटम वहां पे एक्टिव थे, इतने एटम। तो ये एटम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो इससे हमें ये एटम मिल गया यहाँ पे। तो दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ एटम्स मिला, तो जो यहाँ पे रख सकते हैं। लैम्डा निकालने के दो फार्मूले थे, हाफ लाइफ पीरियड नहीं दिया तो इस फार्मूला कोई काम का नहीं, ये फार्मूला काम का है।
दैट इज 2.3 एक साल में N0/N कितने एटम डीके हो चुके हैं, तो 0.1 ग्राम इतना क्वांटिटी डीके हो चुका है। तो सीधा वो ले सकते हैं N0/N, बिकॉज N0 इज इनिशियल, दिस इज द रिमेनिंग, और दोनों का डिफरेंस कितना है हम अच्छी तरह जानते हैं, दैट इज डिफरेंस है 0.1 ग्राम। सो सीधा 0.1 ग्राम डाला आपने, वी हैव व्हाट दिस वन, ये हम लोग मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज द क्वांटिटी व्हाट वी गेट हियर, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं हाउ मच क्वांटिटीज लैम्डा, और लैम्डा हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो विल गेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड। क्लियर विद दिस? सो दैट्स ऑल। होप और 3 न्यूमेरिकल बचे हैं, वो शायद डिस्कस भी हो सकते थे, लेकिन टाइम इज ओवर। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय बाय।